Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to my channel, and today I bring for you all a new lesson explanation for the class 4th NCERT subject English Unit 2 Chapter 2, and the name of the chapter that is The Little Fir Tree. Yes, this chapter is very important because not in the sense of syllabus, but it gives us very moral values about it. Like we always complain what we don't have, but we never praise that thing which we have. We don't know the value what we were having the things. We get to know about those value when we lost it. So this is the story about a little fir tree. So moving forward to our text explanation, who are new in this channel, kindly subscribe the channel and press the bell icon for more update. So this is the text of your chapter, The Little Fir Tree. Little means chota. Tree means ped, and fir is a name of tree about the whole story is based. Have you seen the Christmas tree which you always decorated with different type of things on the 25th December? Yes, that tree is known as fir tree. Basically, it is good in winters that it did not shed its leaf. So your text is, Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. Shetty is the name of magician here, and you know all what is magician. Magician is that who can do magic. Was returning home, he was returning home when suddenly it started rain. It means Shetty the magician. Shetty एक magician का नाम है, magician जादूगर was returning home. वो अपने घर की तरफ वापस लौट रहा होता है. When all of sudden it began to rain. तभी अचानक क्या होता है कि बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है. It rained heavily means you can say that भारी, बहुत ज्यादा अमाउंट में बारिश स्टार्ट हो जाती है. Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. शेटी ने अब अपने आसपास एक शेल्टर देखा. शेल्टर क्या होता है कि इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द बैड वेदर और एनीथिंग एल्स. मतलब एक प्रोटेक्शन वाली जगह आप कह सकते हो, बचाव वाली. शेटी एंड दैट ही सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री. प्रिटी होता है बहुत प्लीजिंग वाला, बहुत प्यारा सा, एक छोटा सा उसने फर ट्री देखा शेटी ने. ही रैन टूवर्ड्स इट एज इट फास्ट ही कुड. वो फटाफट उस टूवर्ड्स होता उसकी ओर, वो उसकी पेड़ की तरफ भागा जितनी स्पीड में वो भाग सकता था. ही इज हेयर शेटी. So in the first para, what we came to know that there is a magician whose name is Shetty, and while returning to home, what he saw that that rain started very heavily, and he find a shelter, and where the shelter he find in under the fir tree. Yes. Now came to our next. Soon the rain stopped. बहुत जल्द ही बारिश बंद हो गई थी. Shetty was happy that he did not get wet. Shetty was happy means he was very happy. Why? Because he didn't get wet. वो गीला नहीं हुआ था. Wet means होता भीगना, especially liquid या water sense के. Soon the rain stopped. Shetty was happy that he did not get wet. जैसे बारिश बंद हुई, जल्दी बारिश बंद हो गई थी, और जो Shetty था वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो भीगा नहीं था. Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. अब ये सब होने के बाद जो magician था वो बहुत ज्यादा खुश हो गया. उसने ट्री को क्या बोला? Thank you, you have been kind to me. तुमने मेरे ऊपर बहुत kindness दिखाई है, बहुत दयालु दिखाई है. I would like to reward you. Reward means आप गिफ्ट करना. मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड करना चाहता हूँ. Ask for 4 wishes and I will grant them. तुम अपनी 4 विशेष मांगो और मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा. ग्रांट मतलब होता स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना. सेड द मजिशियन. और ये सब कहा किसने? मजिशियन. मजिशियन कौन था? शेटी. नाउ नेक्स्ट, द सेड फर ट्री हैड लीव्स लाइक निडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट. एज यू कैन सी ऑन पिक्चर, प्रीवियस पिक्चर, दैट यू हैड सीन दैट फर ट्री. उसकी जो लीव्स थी वो निडल की तरह चुभती थी, सुई की तरह, और कोई भी बर्ड्स उसके आसपास ना बैठती थी ना अपना नेस्ट बनाती थी. सो इट सेड, तो उसने बोला, आई विश आई हैड ग्रीन लिव्स लाइक माई अदर फ्रेंड. तो उसने विश करी, उसकी पहली विश थी दैट कि
आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड, मेरे पास भी वैसी ग्रीन लीव्स होनी चाहिए जैसे बाकी मेरे फ्रेंड्स के पास है. अदर फ्रेंड्स हियर यू आर टॉकिंग अबाउट दैट ट्रीज. नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड. अब अगली मॉर्निंग, ये सब था नाइट का सीन. अगली मॉर्निंग क्या हुआ, जब वो जैसे उठा तो व्हाट ही सॉ दैट इट्स विश वॉज ग्रांटेड. उसकी जो विश थी, उसकी जो पहली विश थी जो उसने मांगी थी वो एक्सेप्ट हो चुकी थी. Soon a goat came along and ate all the green leaves. जल्द ही एक गोट आई, अपने साथ और भी गोट्स थे उसकी. As you can see that in picture, the green leaves, and what the goat done? They eat all the green leaves. Oh dear, said the fir tree. I wish I had gold leaves, as goats do not eat gold leaves. अब पहली विश तो उसने मांगी थी कि उसकी लीव्स जो है वो ग्रीन हो जाए जैसे उसके बाकी फ्रेंड्स की है. बट उसके बाद क्या हुआ, वो हैप्पी तो था लेकिन सडनली व्हाट ही सॉ दैट कि उसमें बस बहुत सारी गोट्स आ गई थी जो उसकी सारी लीव्स खा गई थी. तो व्हाट ही सेड आफ्टर दिस, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स. तो उसने दूसरी विश मांगी कि उसकी जो लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स हैं, वो गोल्ड लीव्स में कन्वर्ट हो जाए, उसके पास गोल्ड लीव्स हो जाए. उसने क्यों बोला, ताकि जो गोट्स होती हैं वो गोल्ड लीव्स नहीं खाती हैं. When the little fir tree woke up the next morning, he was surprised to see gold leaves. जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो जो छोटा सा फर ट्री उठा, वो किस सेकेंड फॉर्म ऑफ वेक, उठना. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इट वॉज सरप्राइज टू सी गोल्ड लीव्स. सरप्राइज मीन्स अमेज, एस्टोनिश, मतलब आश्चर्यचकित होना. इट वॉज सरप्राइज टू सी गोल्ड लीव्स. उसने देखा कि जो सारी लीव्स उसकी ग्रीन थी वो किसमें कन्वर्ट हो चुकी थी, गोल्ड में. गोल्ड मीन्स मेटल, सोना. हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड. इट यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, फर ट्री के. हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड. उसने बोला मैं कितना खुश हूं. एज यू कैन सी दैट इन पिक्चर, द ट्री कन्वर्ट इनटू गोल्डन लीव्स. नाउ A man came along and stole the golden leaves. अब क्या हुआ कि जो मैन आया, वहां पे एक मैन आया, उसने क्या करा, वो सारी गोल्ड लीव्स चोर करके ले गया. स्टोल सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टील, एंड स्टील का मतलब होता है चोरी करना. केम अगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ कम. A man came along and stole the gold leaves. वो मैन आया अपने साथियों के साथ और उसने क्या करा, उसने वो गोल्ड लीव्स को चोरी करके ले गया. I wish I had glass leaf instead. अब नाउ सी, पहले उसने कहा था कि उसको ग्रीन लीफ चाहिए, उसके बाद उसने कन्वर्ट करा गोल्डन लीव्स पे. अब उसकी जो थर्ड विश थी, क्योंकि उसने, आपको याद होना चाहिए कि शेट्टी जो मैजिशियन था उसने उसको 4 विश अलॉट की थी. नाउ सी, आई विश आई हैड ग्लास लीफ इंस्टेड. इंस्टेड होता है इसके बजाय. आई विश आई हैड ग्लास, ग्लास मतलब होता है शीशा, मतलब मिरर वाला जो होता है. आई विश आई हैड ग्लास लीव इंस्टेड मतलब इसके बजाय तो मेरे पास ग्लास लीव होती. मेन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, क्योंकि जो मेन होते हैं ना, MEN, हियर द ट्री इज नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मैन, ही वॉज डिनोटिंग ऑल द मेन. इट्स अ प्लूरल ऑफ MAN. मेन डू नॉट स्टील ग्लास लीव. जो मेन होते हैं वो कभी भी ग्लास लीव स्टोल नहीं करेंगे, मतलब वो कभी भी चोरी नहीं करेंगे. द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव शोन इन द ब्राइट सन. जो नेक्स्ट डे, अब ये विश हो गई. अब नेक्स्ट डे था जो उसने क्या देखा, जो उसकी ग्लास लीव से, शोन इज अ सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैन से दैट शाइन, चमकना. दैट वॉज चमक रही थी. अगली मॉर्निंग ब्राइट सन मतलब सूरज की बहुत तेज उसमें रेस पड़ रही थी, तो बहुत ज्यादा वो ग्लो इन द सेंस चमकना. लाइक आप कभी देखोगे मिरर अगर किसी आप सन के सामने रखते हो तो बहुत ज्यादा शाइन करता है, एक अलग ही शाइन आती है उस पर. आई एम, इट सेड. दोबारा उसने कहा मैं कितना खुश हूं. एट नाइट द विंड ब्लू. अगली उसी रात क्या हुआ, हवा चली बहुत तेज. ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक. और जितनी भी वो ग्लास लीव्स थी वो क्या हो गई, टूट गई. ब्रोक मीन्स टूटना. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक्ड. ओ डियर, सेड द फर ट्री. I like my old needle like leaves best, for goats do not eat them, no man can steal them, the wind will do them no harm. So remember this thing. अभी तक वो 3 विशेस मांग चुका था. पहली विश क्या थी कि उसकी जो लीव्स है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए. दूसरी विश क्या थी कि वो ग्रीन लीव्स गोल्ड लीव में कन्वर्ट हो जाए.
थर्ड विश क्या थी, जो गोल्ड लीव है वो ग्लास लीव में कन्वर्ट हो जाए. नाउ अब वो इन सबसे जब परेशान हो गया तो व्हाट ही सेड, आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट. मुझे अपनी वो पुरानी निडल वाली जो लीव्स थी वो पसंद है, वो ही मेरे लिए बेस्ट थी. फॉर गोड्स डू नॉट ईट देम, क्योंकि गोड्स उन्हें ना खाती थी. नो मैन कैन स्टील देम, ना कोई इंसान उन्हें चोरी कर सकता था. द विंड विल डू देम नो हार्म, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, और विंड जो होती थी, हवा होती थी, वो भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी. तो उसकी ये चारों विशेष जो थी वो दोबारा कन्वर्ट हो गई, मतलब स्टार्टिंग से सेकेंड से थर्ड, फोर्थ, थर्ड से वो वापस बैक आ गया फर्स्ट वाले विश पे. द ट्री वेंट टू स्लीप, फिर ये सब रात को वो बोल के सो गया. When it woke up the next morning, it had all its needle back again. जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठा, अगली सुबह वो उठा, तो उसने क्या देखा, जो उसकी निडल्स थी, मतलब जो उसकी लीव्स थी, वो निडल वाली पहली वाली वो वापस आ चुकी हैं. Oh, I never was so happy, said the little fir tree. Oh, I never was so happy. तो लिटिल जो छोटा सा फर ट्री था उसने क्या बोला, मैं तो कभी इतना खुश नहीं था जितना मैं आज हूँ. Why? Because वो जैसा चाहता था वैसा हो गया. So in all conclusion, there were a small story about a fir tree, or we can say that a message is also a poet conveyed to us. First in that there is nothing. There were 4 things which happened to a tree. What happened? Starting में क्या होता है, एक magician होता है. I'm giving you a summary in a short way now. स्टार्टिंग में एक मजिशियन होता है, जब वो रात को अपने घर वापस लौट रहा होता है तो उसको सडनली बारिश शुरू हो जाती है और बहुत ज्यादा बारिश होती है. तो वो एक प्रोटेक्शन शेल्टर ढूंढता है, उसको एक छोटा फर ट्री के अंदर एक शेल्टर मिलती है, वो उसके नीचे जाता है और फिर कुछ टाइम बाद जो होती है बारिश वो बंद हो जाती है. तो जैसे ही बारिश बंद होती है तो जो मजिशियन होता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा खुश होता है ट्री से कि उसकी वजह से वो भीगा नहीं होता है, तो उसे 4 विश अलॉट करता है. तो वैसे करके जो ट्रीज होता है वो अपनी विशेष जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी अपनी विशेष करता रहता है, एंड देन लास्ट में उसकी विशेष दोबारा वही कन्वर्ट हो जाती है जो उसने करा होता है स्टार्टिंग से. सो व्हाट द लेसन टीच, और व्हाट दैट द फोर ट्री टीचर्स, दैट इट टीचेस अबाउट दैट हाउ वी लुक एट द वर्ल्ड. इंस्टीड ऑफ लुकिंग एट द नेगेटिव थॉट, वी शुड लुक फॉर द पॉजिटिव ऑल अराउंड अस. मतलब हमेशा वी ऑलवेज डू कंप्लेनिंग अबाउट दैट व्हाट वी डू नॉट हैव, but we are not happy what we are having right now. So that is all. So this was your explanation of your chapter, The Little Fir Tree. I hope that you understand what the chapter want to say about its all conclusion. कैसे कैसे उसमें उसका डिवीजन होता है, कैसे वो अपनी विशेष को ग्रांटेड करके या पूरी विशेष को कन्वर्ट कर देता है. So by this I hope you understand a very important lesson. Okay, tell me what you understand from the today's lesson. Just write in the comment section and I'll be knowing that what you guys understand by my explanation or by the message of the chapter. So that's it about this lesson. If you like the video, share it, like it, comment, subscribe, but don't forget to press the bell icon for more updates.